A company has 3 factories situated in north, east and south with its head office in Mumbai. 3 factories हैं अलग अलग zones में. The management has received the following summary report on the operations of each factory for a period. The summary report gives us for each of the zone the sales and profits which have actually happened. Actual कितना sale हुआ, actual कितना profit हुआ, as well as we have the figures of over and under budget. Budget say how much more you have earned or how much less you have earned, incurred. जो भी difference है from the budgeted to the actuals, that difference is given. Calculate for the factory and for the company as a whole for the period fixed cost and break even sales. तीनों zones का आपको calculate for factory, हर एक factory का आपको find करना है, as well as for the company as a whole, तीनों का मिला के you have to find out the fixed cost and you have to give the break even sales. क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? करेक्ट, वी हैव रेड a formula of PV ratio as difference in profit upon difference in sales. Over here we are going to use that. ये जो ओवर या अंडर बजट वाले फिगर्स हैं, दे आर नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बजटेड एंड एक्चुअल्स. बजटेड सेल अगर इतना होता, बजटेड प्रॉफिट इतना होता. एक्चुअल सेल इतना हुआ तो एक्चुअल प्रॉफिट इतना हुआ. उन दोनों में जो डिफरेंस है बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी में, एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी में, सेल्स एज वेल एज प्रॉफिट, दोज डिफरेंस आर गिवन इन ओवर एंड अंडर बजट्स. Simply dividing the over or under budget of profit by the over or under budget of sales, we can get the PV ratios, and then based on the PV ratios we can do the entire calculation. हम बाकी सब कुछ calculate कर सकते हैं. So let's do that. North, east and south, and then the total. We need individuals as well as the totals. हमें दिया हुआ है ओवर और अंडर प्रॉफिट, ओवर और अंडर बजटेड प्रॉफिट एंड सेल्स. 180, 90, 110, 400, 150 and 200, where all the figures are in thousands. So we can calculate PV ratio as difference in profit upon difference in sales. 180 divided by 400 into 100, 45%. Next 60% and next 55%. यही होंगे हमारे PV ratios. Then we have the actual sales. Actual sales है हमारे पास 1100, 1450 and 1200. Now what we have to find is fixed cost. ये तो PV ratios आ गए, हमें एक्चुअली चाहिए फिक्स कॉस्ट. सो व्हाट वी विल डू, जो एक्चुअल वाला डेटा है उस पे पीवी रेशियो अप्लाई करेंगे. वी विल गेट एक्चुअल सेल्स पे पीवी रेशियो अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, डिडक्टिंग दैट फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस एक्चुअल प्रॉफिट, दैट विल गिव अस द फिक्स कॉस्ट. ओके, सो वी कैन फाइंड एक्चुअल contribution is equal to actual sales multiplied by the PV ratio. 495, 870 and 660. This is the actual contribution. Deducting the actual profits from here, which are 135, 210 and 330. We'll get the fixed cost
330, 660 and 360. So individual तीनों फैक्ट्रीज का फिक्स कॉस्ट मिल गया. What will be the total? 1350. ये हो गया फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट में वी नीड द ब्रेक इवन सेल्स. सो वी हैव द पीवी रेशियोज, वी हैव द फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो विल गिव अस द ब्रेक इवन सेल्स. Break even sales is equal to fixed cost upon PV ratio. 800. 1100. 600. So the total, अगर हम कंपनी का देखें तो टोटल will be 2500. 2500 लिख लो and then read 14th. Question number 14. X Limited manufactures a semiconductor for which the cost and price structure is given below. Product जो है हमारा that's named as semiconductor. Cost structure is given as selling price per unit 500, material cost 150, labor 100, variable overheads 50. Fixed cost rupees 2 lakh. The product is manufactured by a machine whose spare part costing rupees 2000 needs replacement after every 100 pieces of output. बोला गया है जिस मशीन में स्पेयर पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इट रिक्वायर्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ अ स्पेयर पार्ट आफ्टर एवरी 100 यूनिट्स. एक बार हमने स्पेयर पार्ट लगाया, 100 यूनिट जितना प्रोडक्शन हुआ, आफ्टर दैट अगेन वी हैव टू रिप्लेस दैट स्पेयर पार्ट, and every time that spare part cost us 2000 rupees. This is in addition to the above cost. ऊपर किसी भी cost में ये include नहीं किया गया है. Now will this spare part cost be variable or it will be fixed? It will be semi variable. It's neither variable. ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 यूनिट बनाए तो उसके अकॉर्डिंग ही लग रहा है, 10 बनाए तो उसके अकॉर्डिंग लग रहा है. एक बार अगर आपने इनकर किया, so for the continuous 100 units it will be same. Whenever you will start the production, आपका ये जो कॉस्ट होगा ये 2000 रुपीज होगा. जब भी आप पहले यूनिट से स्टार्टिंग करोगे, टिल 100 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट विल बी 2000. जैसे ही आप 101 यूनिट बनाना चाहोगे, आपको स्पेयर पार्ट रिप्लेस करना पड़ेगा, सो योर कॉस्ट विल जंप टू 4000. देन अगेन it will be maintained till 200 units. Again it will jump and it will be maintained for next 100 units. Like that it will be. Such cost, these are not fixed. Fixed के हम जानते हैं, it is a straight line when we form a graph of fixed cost. For variable we have again a diagonal straight line for variable cost. Correct? यहाँ पे ना हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है ना डायगोनल स्ट्रेट लाइन है. सो इट्स नीदर फिक्स नॉर वेरिएबल, इट इज सेमी वेरिएबल. सेमी वेरिएबल में भी इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉस्ट विच वी कॉल एज स्टेप कॉस्ट. इट्स इंक्रीजिंग एज स्टेप्स. इसको हम स्टेप कॉस्ट बोलते हैं. नॉर्मल जो हमारे सेमी वेरिएबल कॉस्ट होते हैं ना, दे फॉर्म ईदर अ कर्व लाइक दिस और अ कर्व लाइक दिस, समथिंग लाइक दैट. कर्व में the costs are formed in a graph. So over there it's easy for us to bifurcate them between fixed and variable. जब भी कर्व्स में ग्राफ होता है तो हम इजीली उसका फिक्स्ड एलिमेंट अलग और वेरिएबल एलिमेंट अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं. बट इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस ऐसा नहीं है. वी आर नॉट हैविंग अ कर्व, वी आर हैविंग स्टेप्स.
तो स्टेप कॉस्ट को अलग से हम आइडेंटिफाई इसलिए करते हैं बिकॉज दे नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. इनका बाइफिकेशन नहीं हो सकता, सेग्रीगेशन नहीं हो सकता बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल. नॉर्मली जो भी सेमी वेरिएबल होते हैं हम उन्हें सेग्रीगेट कर लेते हैं एंड देन फिक्स को फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देंगे, वेरिएबल एलिमेंट को वेरिएबल कॉस्ट में ऐड कर देंगे. बट ओवर हियर द एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेग्रीगेटेड. इसका हम अलग तरह से ट्रीटमेंट करेंगे. आगे देखें. Assume that no defectives are produced and that the spare part is readily available in the market at all times at rupees 2000. Defectives कुछ भी नहीं होते, पूरे के पूरे 100 units are the good units. And secondly, spare part हमेशा हमें 2000 rupees का मिल जाता है. First, prepare the profitability statement for production levels of 2000 units and 3000 units when fixed cost is equal to 1 lakh rupees. वैसे तो ऊपर दिया है कि fixed cost is 2 lakh, बट यहाँ पर अलग से जब बोल रहे हैं तो हमें यही कंसिडर करना पड़ेगा फॉर दिस पॉइंट ओनली. आगे के पॉइंट्स के लिए वील अगेन कंसिडर 2 lakhs. तो बोला गया है आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के बताना है विद द क्वांटिटी एज 2000 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स. सेकेंड, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द अबव डेटा. फर्स्ट वाला जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है दैट इज कंपैरेटिवली इजी. हमें सारे कॉस्ट मालूम है, कॉस्ट स्ट्रक्चर्स मालूम है, किस तरह से वो चेंज होंगे, क्वांटिटी दी गई है, सो वी कैन फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. ब्रेक इवन पॉइंट के केस में देयर विल बी सम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स. हमने डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट देखा था लास्ट लेक्चर में, डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट बेसिक्स वाले लेक्चर में, और हमने ये भी देखा था ये जो डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट होते हैं वहां पर देयर आर चांसेस कि वी विल हैव मोर देन वन ब्रेक इवन पॉइंट. व्हाई मोर देन वन ब्रेक इवन पॉइंट? डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट विल बी द सेम, आफ्टर दैट इट विल चेंज. इतना आउटपुट करोगे तो फिक्स कॉस्ट इतना होगा, उसके बाद हमें कोई एक्स्ट्रा मशीनरी, कोई एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगाना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगा. नाउ इफ द कंट्रीब्यूशन लाइन पासेस थ्रू बोथ ऑफ दीज लाइन्स, दोनों से अगर पास करती है तो दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ऑल्सो द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, एट दिस पॉइंट ऑल्सो द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट. तो दोनों ही हमारे लिए ब्रेक इवन है. हम पहले यहाँ पर ब्रेक इवन करेंगे, ब्रेक इवन करने के बाद वी विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स. दिस विल बी द प्रॉफिट जोन. इस जोन में हम प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं. आफ्टर दैट एज सून एज हमारा जो आउटपुट है वो इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, जैसे इसके आगे आउटपुट जाएगा, कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज थोड़ा सा होगा जबकि फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा से बढ़ जाएगा. सो दैट इज वाई हमारा प्रॉफिट होने की जगह उल्टा हम वापस लॉसेस में आ गए. अब फिक्स कॉस्ट तो इतना है, कंट्रीब्यूशन इतना ही मिल रहा है, it's lower than the fixed cost. So again this area is for loss. ये प्रॉफिट का रीजन था. उसके बाद जैसे ही फिक्स कॉस्ट चेंज हो गए, क्योंकि अचानक से फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हम अब वापस से लॉसेस में आ गए. ओके, आफ्टर दैट वील अगेन स्टार्ट रिकवरिंग दीज लॉसेस. जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी लॉस की रिकवरी होती जा रही है. एट दिस पॉइंट वी विल अचीव अगेन अवर ब्रेक इवन. सेकेंड टाइम हम दोबारा से यहाँ पर ब्रेक इवन अचीव करेंगे. यही पढ़ा था हमने डिफरेंशियल फिक्स कॉस्ट में. अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कैन अप्लाई. हो सकता है कि यहाँ पर भी हमारी कंट्रीब्यूशन की लाइन कुछ ऐसे जाए. सो वी कैन हैव मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट्स. यहाँ भी ब्रेक इवन कर लेंगे, यहाँ भी ब्रेक इवन कर लेंगे, यहाँ भी ब्रेक इवन कर लेंगे. हम अलग अलग पॉइंट्स पे अगेन एंड अगेन वील बी एबल टू ब्रेक इवन. क्यों ऐसा? आपने यहाँ पे ब्रेक इवन किया, प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया, बट जैसे ही आपका आउटपुट 101 हुआ, आपका ये कॉस्ट अचानक से बहुत बढ़ गया. आपका प्रॉफिटेबिलिटी, आपका सेलिंग प्राइस, रेवेन्यू उतने से नहीं बढ़ा जितने से ये कॉस्ट बढ़ गया. तो अगेन यू आर इनटू लॉसेस. प्रॉफिट शुरू करने के बाद जैसे ही क्वांटिटी आपने थोड़ी बढ़ाई, आप वापस से लॉसेस इनकर करने लगे. इन लॉसेस को रिकवर करते करते अगेन यू ब्रोक इवन. वापस से आपने ब्रेक इवन अचीव किया, रेवेन्यूज आर इक्वल टू योर टोटल कॉस्ट. उसके बाद दोबारा प्रॉफिट अर्न करना शुरू किया. उसके बाद वापस से जैसे ही आपने 201 यूनिट बनाया, आपका ये कॉस्ट अगेन बढ़ गया.
कॉस्ट बढ़ गया जबकि रिवेन्यू तो स्लो पेस पे ही चल रहा है, कॉस्ट अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, सो वापस यू आर इनटू लॉसेस, देन अगेन यू माइट ब्रेक इवन। ये समझ में आया? So whenever there will be a case of step cost, there are chances that we might have multiple break even points. जरूरी नहीं है कि हमेशा ही हो, अगर ये लाइन ऐसी निकल जाए तो एक ही बार ब्रेक इवन हुआ, उसके बाद कहीं पर भी हमने कॉस्ट वाले लाइन को टच ही नहीं किया, हम हमेशा उससे ऊपर ही है। So it's not necessary, always we will have multiple break evens. बट देर आर चांसेस, देर इज पॉसिबिलिटी कि हमारे पास मल्टीपल ब्रेक इवन पॉइंट्स हो सकते हैं। क्लियर है? तो हमें ब्रेक इवन निकालते टाइम ये ध्यान में रखना होगा, ब्रेक इवन इज नॉट जस्ट फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इट इज द पॉइंट वेयर वी आर एबल टू रिकवर ऑल अवर कॉस्ट। तो किस किस पॉइंट पर हम अपने सारे कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे, वो सारे हमारे ब्रेक इवन होंगे। ओके जब भी आपको स्टेप कॉस्ट का क्वेश्चन होगा, ब्रेक इवन पूछा ही जाएगा। स्टेप कॉस्ट में मेन ही ये चीज होती है, ब्रेक इवन पॉइंट। बाकी तो कुछ खास उतना फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इजिली यू कैन मेक इट आउट। ब्रेक इवन कैलकुलेट करने में दिमाग लगेगा। तो व्हेनेवर देयर विल बी स्टेप कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट, comment on the break-even point if the fixed cost can be reduced to rupees 1,80,000 from the existing level of 2 lakhs। थर्ड पॉइंट में बोला है, अगर मान लो फिक्स कॉस्ट आप 2 लाख से 1,80,000 पे लेकर आ जाते हो तो आपके ब्रेक इवन पे क्या इफेक्ट होगा, यू हैव टू कमेंट अपॉन दैट। ओके, मतलब सेकेंड वाले में आप ब्रेक इवन फाइंड कर रहे हो बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट ऑफ 2 लाख, थर्ड वाले में आपको ब्रेक इवन फाइंड करना है पहले बेस्ड ऑन फिक्स कॉस्ट ऑफ 1,80,000, उसके बाद उस पर कमेंट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ओके सबसे पहले तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना लीजिए।